So it is mainly for Indian nationals who are going to study in India, जो basic science BSc MSc को के लिए जा रहे हैं, उसके लिए mainly ये fellowship होती है. It is conducted for 3 different streams in different standards में conduct की जाती है. If you are in 11th standard, then stream essay is applicable for you. If you are in SX if you are in 12th standard, then stream SX will be applicable for you. Then SB is mainly for the student who are currently studying in first year of their graduation for like BSc, B state, that is Bachelor of Statistics, Bachelor of Mathematics, जो हमारे काम का नहीं है बेसिकली. क्लियर? सो 11th में जब हमें and if we are studying PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, PCM भी हम कुछ स्टडी कर रहे हैं, then we can go for this exam. और 11th में जब 2020-21 सेशन में तभी हम ऐसे दे सकते हैं. 12th स्टूडेंट कैन नॉट गिव ऐसे एग्जाम ना, ऐसे वाला एग्जाम 12th वाले नहीं दे सकते हैं, 11th वाले ऐसे दे पाएंगे. एंड फॉर द 12th स्टैंडर्ड दे कैन गिव ओनली SX who are currently in 12th standard for the academic year 2020-21. Eligibility for SA and SX, क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब कब हम ये एग्जाम दे सकते हैं? Definitely first you should be in science field, PCM or PCB field during this academic year. First eligibility criteria. Second eligibility criteria is the student must have minimum 75% for open category and 65% for SC, ST, PWD category in mathematics and science aggregate in 10th standard. So mathematics plus science, दो subject मिला के you must have minimum 75% or 65% for the SC, ST and PWD category. इतने मार्क्स होने चाहिए तब तुम ये एग्जाम के लिए एलिजिबल होगे, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू गिव द एग्जाम यदि 10th में इतना परसेंटेज नहीं होता है. एंड स्टूडेंट must secure minimum 60% marks in 12th standard to get the fellowship. देखो एग्जाम तो तुम डेफिनेटली दे पाओगे क्योंकि 12th बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा जब तक. जनवरी में एग्जाम कंडक्ट होता है, होगा इस बार, जनरली नवंबर में हो जाता है. सो you are eligible to give the exam, but for fellowship you must have minimum 60% for the open category and 50% for SC, ST and PW category in 12th standard. इतना होना चाहिए हमें, 75% in 10th and 60% in 12th standard. कुछ डेट्स हैं. Important dates: opening of online application portal which has already started in like roughly 10 days back. 6th September को ये start हो गया था. Clear? And the date of closing online application is 5th of October. वो 5th October है. इसके बाद online application भी close हो जाएगा. So you still have some time, around 18 days time, 2 to 3 weeks का time है हमारे पास. Date for the admit card release is second week of January. Generally 10th of January के आसपास ये release होगा. Second week दिया गया है officially. Date of examination will be 31st of January. 31st January को exam होगा in the for the two different phases. The timings are different, but the date is same for both 11th and 12th, SA and SB, SA and SX. So for 11th standard, you can see here the timing is morning 9:30 to 12:30, afternoon ये time होगा, 3 hours का पेपर होता है. And for stream SX 12th standard students, their timing will be 2 to 5 PM on the same date. अच्छा, last year तक जो KVPY का एग्जाम होता था, that is conducted in 2 phase. First phase जो होता है subject, मतलब जो objective exam होता है, written होता है, तुम्हें एग्जाम देना पड़ता है, पेन पेपर एग्जाम होता है. सेकंड इज इंटरव्यू, दैट इज फाइनल स्टेज. क्लियर? Until last year the weightage was around 75% for the that is pen paper test जो भी objective exams था, and 25% for the interview. और approximately 1700 to 1800 students enroll होते हैं इस एग्जाम में. मतलब फर्स्ट एग्जाम में 17 to 1800 स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं टू गिव द इंटरव्यू, और उसमें सर 1100-1200 स्टूडेंट्स को फाइनली सिलेक्ट किया जाता है.
और दोनों का ही कुछ वेटेज है, लाइक 3/4 वेटेज एंड 1/4 वेटेज, इतना कुछ है, 75%, 25%. बट दिस ईयर इंटरव्यू विल नॉट बी कंडक्टेड. ऑलरेडी एग्जाम थोड़ा डिले हुआ है. नवंबर में जो एग्जाम होता था, नो एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन जनवरी मंथ. सो ऑलरेडी 1 to 2 months डिले हो गया, इसलिए इंटरव्यू नहीं रखा गया है. जनरली जनवरी इज टाइम फॉर द इंटरव्यू. क्लियर? सो ये इंपॉर्टेंट नोट है जो हमें ध्यान रखना है. 100% selection will be based on written test. Application for KVPY 2020 must be done online only. ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास इस बार. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कुछ साइट दे रखी है, मैं इवन उस साइट पे जाके भी तुम्हें बताऊंगा कि कैसे क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा. First, you need to fill personal and academic details, choosing test center and uploading a photo, signature and other certificate as applicable. जो भी वहां पर तुम्हें ऑप्शंस में दिए होंगे वो सारे सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे. Then you have to make a payment, online payment through ATM card or maybe credit card, some net banking, जो भी ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल है वहां से तुम पेमेंट कर सकते हो. And the fees for the application is 1250 rupees for general and OBC category, and it is 625 rupees for SC, ST and PWD category. Plus maybe some bank charges will also be there. कुछ हो सकता है इसमें 50, 10, 20 तुम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो. On the basis of that you also need to pay some bank charges. मैं थोड़ा सा इसके रजिस्ट्रेशन के डिटेल में चला जाता हूँ. ये जो लिंक है that will be share on the group also. तुम जो पीपीटी है चेक कर सकते हो वहां से. जस्ट इस लिंक को कॉपी पेस्ट करना है हमें. Anyone please confirm me. Sakshi, screen is visible? Sakshi, you Yes, can. sir. Okay. And please don't unmute yourself. Anyone, if you have any query, you can raise your hand. You can type in chat box. तो सबसे पहले हम उस साइट पे गए जो ऑलरेडी शेयर की गई थी. यू कैन ऑल्सो सर्च दिस साइट ऑन गूगल. KVPY सर्च करोगे ऑफिशियल साइट से. Then on this site you can click on this portal, KVPY Aptitude Test 2020 Application Portal. You can click here. After clicking here, सर KVPY की वेबसाइट नहीं दिख रही. स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है अभी? हाँ सर. नहीं सर. नो सर. सर वो पहले का ही पेज दिख रहा है स्टेप्स का. Let me share it again. Wait for 1 minute. Just wait for 1 minute. So probably now it is visible. Is it okay now? Yes sir, it's visible. Okay. Yes sir. Sure. So I'm starting from the first step again. हमें क्या करना है, जो ऑलरेडी साइट लिंक दे रखी है पीपीटी फाइल में जो शेयर की जाएगी ग्रुप पर, या तुम KVPY गूगल पे भी सर्च करोगे, ऑफिशियल साइट है. Then you need to click on this KVPY Aptitude Test 2020 Application Portal. यहाँ पे क्लिक करना है तुम्हें. You will get this page. Then on the right side Application 2020 ये जो लिखा हुआ है Registration and Application Login. Click here. Clear? हमें यहाँ पे क्लिक करना है. सेकंड क्लिक, एक सेकंड विंडो ओपन होगा which is opening now. So कुछ ऐसा विंडो ओपन होगा. साक्षी, is it visible? General instruction for KVPY दिख रहा है ये? नो, हाँ अभी दिख रहा है. ठीक है. So ये पेज ओपन होगा, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस है. You need to read this instruction carefully. Clear? यहाँ पे क्योंकि ये सब कुछ लिखा हुआ है. What documents are required to fill the application form? तो ये सारे documents like your photo, scanned copy of your photograph
एंड देन मोबाइल नंबर जो एक्टिव हो उस पे ओटीपी वगैरह आएगा, वो सारी चीजें एक बार से इंस्ट्रक्शन को हमें अच्छे से पढ़ लेना है जब तुम अप्लाई करोगे, बेसिक इंस्ट्रक्शन है. Then you can click here, I hereby confirm that I have read all the instruction carefully. Then click on the login page. This is the process for the registration. तो ये registration page कुछ ऐसा open होगा. First time when you are going on the site, you have to click on, if you do not have any login details, please click here for the registration, जो सबसे नीचे दिख रहा है नोट में, हमें वहां पर क्लिक करना है. So when you click on them, you will get one page जिसपे सारी डिटेल्स तुमसे पूछी जाएंगी. ऐसे कुछ पेज ओपन होगा. Close, you can click on close option here. Rituji, is it visible registration form? Rituji, Saima, Sakshi, please confirm me. Anyone of you? Yes, sir. Yes, yes. Okay. Yes. Yes, sir. So Yes, sir. just okay, that's okay. Just मैं यहाँ पे कुछ भी X, Y, Z, name of the candidate, you need to write your name, then date of birth, जो भी तुम्हारा है date of birth select करना है हमें. और ध्यान रखना इस this page is non editable, तो तुम्हें जो भी fill करना है carefully fill करना है. यहाँ पर select class 11th or class 12th. So let's say you are in class 11, so ऐसे stream में रहोगे if you are in class 11. If 12, you have to write SX. Clear? Mobile number, let's say the mobile number is this. मैं अपना mobile number डाल देता हूँ. Confirm it. Then email ID. Confirm email ID. Indian national. Only Indian nationals are eligible for fellowship. Then this character SB22WN7. I agree. Click on I agree and then register. You have been registered successfully. Log out and re-log in and complete your application form by using the credentials shared on your email ID and mobile number. So basically इतना ये registration हो गया है, इसे close करना है. Then again we have to go to login page. Clear? हमें login page पे जाना है further. मतलब हमें इस page पे जाना है, ये login वाला page. फर्दर यहीं से हमें स्टार्ट करना होगा. देन नाउ यू कैन पुट योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड. मैं अपना मेल आईडी चेक भी कर लेता हूं, कुछ उसमें आया होगा डेफिनेटली. बट वो एसएससी रेजोनेंस वाला मेल आईडी था, वो मेल आईडी आई थिंक क्लोज नाउ. मैंने जो मेल आईडी डाला था तो उसमें कुछ यूजर आईडी आएगा, पासवर्ड आएगा जो तुम्हें यहाँ पे पुट करना है. देन यू हैव टू फिल योर इंफॉर्मेशन लाइक योर डॉक्यूमेंट्स, फोटो, वो सारी चीजें अपलोड करनी होंगी जो तुम देखते जाओगे. इजीली यू विल गेट एवरीथिंग. उसमें बहुत ज्यादा कुछ ट्रिकी नहीं है वंस यू गेट द लॉगिन. और फाइनली उसमें पेमेंट का ऑप्शन आएगा जो तुम्हें पेमेंट पे क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट करना होगा. क्लियर? चलो
हम वापस उस पे चले जाते हैं। ये मतलब पूरा रजिस्ट्रेशन के लिए इंफॉर्मेशन हो गई कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। काफी इजी है, घर बैठे बैठे इजीली तुम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एंड द होल प्रोसेस विल टेक मैक्सिमम 20 to 30 मिनट्स, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। Sir, is it this exam online? यस, द एग्जाम हम आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। एवरीथिंग इज ऑनलाइन, even registration form, application registration, everything till your final exams, admit card, you will get everything online. Clear? Test centers in Maharashtra, KVPY aptitude test center in Maharashtra, like Nasik is one of the center जो हमारे लिए useful है, and other than Nasik, Amravati, Aurangabad, Jalgaon, Kolhapur, Mumbai, Nagpur, Navi Mumbai, Pune, Thane. If you are not in Nasik for that period, और तुम्हें ऐसा लगता है कि उस पीरियड में तुम पर्टिकुलर होम टाउन में होंगे और होम टाउन किसी भी दूसरे सिटी के पास में, तो वो ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। सो महाराष्ट्र में इतने ऑप्शंस हैं। अब ये तो एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हुआ। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इफ वी क्लियर दिस एग्जाम, हमें क्या फायदा है इस एग्जाम को क्लियर करने का। सो यू विल गेट फेलोशिप। द स्टूडेंट हु क्वालिफाई इन केवीपीवाई एग्जाम आर एलिजिबल फॉर अ फेलोशिप। और किस फेलोशिप के लिए एलिजिबल होंगे? इफ यू आर गोइंग फॉर एनी ग्रेजुएशन इन बेसिक साइंस, यदि तुम बीएससी, बीएस, बीस्टेक मतलब साइंस की किसी भी बैचलर डिग्री के लिए जा रहे हो, तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगा। इवन इफ यू आर गोइंग फॉर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बीएससी प्लस एमएससी, तो उसमें भी तुम्हें फेलोशिप मिलेगा। और वो जो स्कॉलरशिप होगा वो ये एग्जैक्टली टेबल में लिखा हुआ भी है। फॉर SASXSB फर्स्ट टू थर्ड ईयर इन बीएससी, बीएस, बीस्टेट, बीमैथ, क्लियर, इन सारे प्रोग्राम में यू विल गेट 5000 पर मंथ स्कॉलरशिप। and for 4 to 5th year if you are going for integrated program BSc plus MSc के लिए तुम जा रहे हो, तो जो फाइनल 2 years हैं उसमें तुम्हें 7000 पर मंथ मिलेगा। मतलब 5000 पर मंथ, 60000 per annum, and this will be 12 into 7, that is 84000 per annum plus 20000 and 28000 respectively, they are annual contingency। ये जो 20000 है, 28000 है, if you are going for some project, some summer internship, science से related कुछ कर रहे हो, traveling जो हो रहा है, उसके लिए तुम्हें इतना मिलेगा। So this is not like fixed, maximum 2028 है, that depends on you कि तुम कितना मतलब किसी प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। क्लियर? और यही टेबल का पूरा ऊपर डिटेल दे रखा है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि like if we are not going for all this degree, तो what is the use to give KVPY? See, अब हमें जो यूज है KVPY का वो ये है, फर्स्ट you are eligible for the fellowship, second you can take admission into IISc Bangalore, that is Indian Institute of Science, and you can take admission directly into IISER, Institute for Scientific and Engineering Research, and you can take admission in IIIT, that is Institute of Information Technology, इसमें एडमिशन ले सकते हो। क्लियर? सो अगेन यहाँ पे जो तुम्हें डिग्री मिलेगी वो डेफिनेटली बैचलर इन साइंस, बेसिक साइंस ये डिग्री मिलती है, बट दे आर वेरी वेरी गुड कॉलेजेस इफ यू वांट टू गो फॉर रिसर्च इन योर लाइफ, लाइक हमें पीएचडी करना है, रिसर्च के लिए जाना है, तो काफी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं सारे। और अगेन इफ यू क्लियर द KVPY, डजंट मैटर यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन सम इंजीनियरिंग कॉलेज और IIT में एडमिशन ले रहे हो, तो वो भी मैटर नहीं करता है। तुम्हारे रेज्यूमे में जब ये लिखा हुआ आएगा KVPY क्लियर्ड, वो बहुत मैटर करेगा आगे जाकर। ठीक है? आई गॉट वन मैसेज, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, तो मुझे कंफर्म करने दो फिर किसी से। पीयूष, It's visible, sir. ठीक है, इट्स ओके। Visible, sir. Excuse me, sir. चलो, Excuse me, sir. हाँ, you can, if you get any doubt, you can type in chat box, because मैं यदि सभी एड्रेस करूँगा तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, काफी बच्चे हैं। तुम्हारा कुछ भी क्वेरी है, you can type in chat box, मुझे जो लगेगा कि हाँ सबके साथ शेयर करना चाहिए मैं कर लूंगा।
Okay, so you can take admission into these colleges. अब आते हैं हम एग्जामिनेशन पैटर्न एंड एग्जामिनेशन सिलेबस। क्या इसका पैटर्न है, सिलेबस क्या है? सो फॉर 11th स्टैंडर्ड, दैट इज ऐसे part 1, the exam has two part 1 and part 2. Part 1 has physics, chemistry, mathematics and biology. Part 2 will also have the physics, chemistry, mathematics and biology. चारों सब्जेक्ट होते हैं PCMB, and all 4 sections are compulsory for you whether you are a engineering student or medical student. तुमने 11th में PCM ऑप्ट किया है या PCB ऑप्ट किया है, दोनों ही कंपलसरी, सारे ही कंपलसरी होते हैं तुम्हारे लिए। क्लियर? इन 11th स्टैंडर्ड, बट नॉट इन द 12th। 11th में सब कुछ कंपलसरी है। क्लियर? ये जो Bio is also compulsory for engineering student, mathematics is also compulsory for biology students. But हाँ, मैं तुम्हें जैसे बताता हूँ, टोटल क्वेश्चंस 80 क्वेश्चंस होंगे। मैं पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे चले जाता हूँ, फिर इस पे आते हैं। So the number of questions for the 11th standard is 15 questions of 1 marks in mathematics, chemistry, physics and biology, and 5 questions of 2 marks in each section, mathematics, physics, chemistry and biology. Total 80 questions होते हैं। All 80 questions are compulsory for everyone. Clear? सारे ही 80 questions 11th standard में compulsory होते हैं। और काफी बच्चे, ऐसा नहीं कि बायोलॉजी पढ़ते हैं इसके लिए स्पेशली साइंस मैथ्स के बच्चे हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ PCM दे कैन क्लियर द एग्जाम। जो 20 क्वेश्चंस उसमें बहुत ज्यादा नहीं भी बनता है तो भी एग्जाम क्लियर हो जाता है। स्टिल इट इज एडवाइजेबल, यदि 11 के स्टूडेंट हैं, just read 9th and 10th biology textbook once if you really want to go for this. Clear? यदि तुम एक्चुअली जाना चाहते हो तो ये कर सकते हो। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, उस पर भी आते हैं। नेगेटिव मार्किंग कैसे क्या होती है? सबसे पहले मैं 12th का भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन सेक्शन 1, देन सेक्शन 2 और पार्ट 2 10 क्वेश्चन फ्रॉम ईच of 2 marks. तो यहाँ पर तुम देखोगे the number of questions are 120, but all 120 question will not be compulsory for engineering student, PCM student और PCB student. जो ये 1 marks वाले questions हैं, mathematics, physics, chemistry and biology, you can choose any 3 of this. कोई भी 3 part तुम choose कर सकते हो। Generally, if you are going for engineering preparation, PCM choose करते हैं बच्चे। बायोलॉजी के क्वेश्चन अटेंड करना ही नहीं होते। हाँ, यदि किसी बच्चे ने मान लो चारों सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस अटेंड कर लिए, तो जो काउंटिंग होगी वो ऐसे होगी, यदि उसके केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में मान लो जो भी टॉप 3 सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो ज्यादा मार्क्स हैं वो काउंट हो जाएंगे। द सब्जेक्ट इन विच यू आर गेटिंग द लेसर मार्क्स, उसे ना प्लस काउंटिंग में किया जाएगा ना नेगेटिव मार्किंग में काउंट किया जाएगा, उसे अवॉइड कर दिया जाएगा। क्लियर? एंड ये जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, यू जस्ट नीड टू चूज एनी 2 सेक्शन। 4 सेक्शन में से सिर्फ 2 ही सेक्शन चूज करने हैं, मतलब 20 क्वेश्चंस फ्रॉम 2 मार्क्स एंड 60 क्वेश्चंस फ्रॉम 1 मार्क्स। 80 क्वेश्चन हो गए जो 11th में थे, एग्जैक्टली उतने ही क्वेश्चंस। द टाइमिंग इज सेम 3 और ड्यूरेशन इज सेम। क्लियर? एंड द टोटल मार्क्स फाइनली इज सेम। तुम देखोगे 12th में एसएक्स स्टूडेंट के लिए टोटल मार्क्स 160 लिखा है, बट 160 मार्क्स का हमें अटेम्प्ट करना ही नहीं होता है। क्लियर? हम कुछ नेगेटिव मार्किंग स्कीम देख लेते हैं एक बार। So SX, physics, chemistry, biology and mathematics, part 2 also contain 4. Candidate may answer any 3 of the 4 subjects in part 1 for the 12th standard SX stream, and 2 of the 4 subjects in part 2 in case candidate attempts more section. Best of 3 in part 1 and best of 2 in part 2 is considered. बेस्ट जो भी होंगे वो कंसिडर किए जाएंगे in 3 in the part 1 and 2 in the part 2. But 11th में we don't have any option, we need to attempt all the questions. मार्किंग स्कीम के बारे में कुछ लिखा हुआ है। फॉर एसए स्ट्रीम, फॉर बोथ एसए एंड एसएक्स, दोनों ही स्ट्रीम के लिए कुछ ऐसा मार्किंग स्कीम होगी। There will be 80 questions divided in 2 parts. Part 1 will include 60 questions with 1 mark each, and for every incorrect answer there will be negative marking, that is 1/4. यदि 1 मार्क तुम्हें सही क्वेश्चंस के लिए मिल रहा है
तो 0.25 मार्क्स नेगेटिव होंगे इफ यू आर टेकिंग एनी रॉन्ग ऑप्शन। क्लियर? जैसा जेई में होता है 1/4। देन पार्ट 2, the number of questions is 20, 2 marks for each question and the negative marking will be again 1/4, 0.5 नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। सही करने पे 2 मार्क्स, गलत करने पे -0.5 मार्क्स। द ओनली डिफरेंस बिटवीन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जो मार्किंग स्कीम है वो डबल हो गई है। इंस्टेड ऑफ 1 मार्क्स नाउ द 2 मार्क्स इज अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन एंड द नेगेटिव मार्किंग इज आल्सो डबल। 0.25 था पहले नेगेटिव में, नाउ इट इज -0.5। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ वेदांत बोलो। सर हमें अभी IIT JEE एग्जाम के लिए एडमिशन लिया है ना, तो साइड बाय साइड हमें KVPI देनी होगी ना? यस, और थोड़ा सा वेट करो। आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। शायद इस पूरा प्रेजेंटेशन के बाद इफ यू गेट एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मुझे पता है 11th के बच्चों को बहुत ज्यादा नहीं पता होता है KVPY के बारे में, इसलिए ये सेशन रखा है। सो मैं तुम्हारे वो सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ कि क्या होगा। अभी जस्ट एग्जाम पैटर्न के बारे में हमने डिस्कस किया, कैसा एग्जाम पैटर्न होगा। एग्जाम इज इंटायरली कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड। ठीक है, ऑनलाइन होगा एग्जाम। काफी बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं या कुछ डाउट पूछ रहे हैं, बट अभी मैं एड्रेस नहीं कर रहा हूं। पहले मैं अपना पूरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेता हूं। स्ट्रीम ऐसे सिलेबस, द सिलेबस फॉर 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स, इवन एग्जैक्टली सिलेबस लिखा हुआ है। that will also be shared on the group, तुम देख सकते हो। बट हाँ, एक मैं रफ आइडिया देता हूँ। इफ यू सी द केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस, कुछ चैप्टर्स इस बार जो रखे गए हैं 10th के रखे हैं और कुछ चैप्टर्स 11th के रखे गए हैं। 12th का केमिस्ट्री में आई एम नॉट गेटिंग any chapter of 12th standard, but the same thing is not valid for physics, biology and mathematics. उनमें कुछ थोड़ा सा पोर्शन जो 12th के स्टार्टिंग का होता है वो भी रखा गया है। क्लियर? इन फिजिक्स यू कैन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक which is the first chapter of 12th standard. Maximum are from 11th, but हाँ कुछ चैप्टर्स 12th से भी हैं in physics and mathematics, physics, mathematics and biology. Clear? सर फिर जो इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बायोलॉजी के आपने बोला कि 9th और 10th की टेक्स्ट बुक पढ़ने हैं, पर इधर तो 12th का भी स्टार्टिंग होगा, तो मतलब उसे क्या हैंडल करेंगे वो? See, there are two things. We are going for engineering preparation. We are going to take admission for bachelor in engineering, or we are going to take admission for bachelor of science. Definitely, if your final aim is like you want to take admission for BSc, MSc, then definitely you can give some time for this biology also. और उसके लिए इवन तुम कुछ बायोलॉजी के लेक्चर्स लगा सकते हो पाठक सर के, कोई इशू नहीं है। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हु आर हियर दे आर फॉर प्रिपरेशन ऑफ जेई, तो इंजीनियरिंग के लिए ऑप्ट करते हैं। तो हम स्पेशली इसके लिए बहुत ज्यादा अलग से फोकस नहीं करते। बट हाँ, मैं तुम्हें ये जरूर श्योरिटी दे सकता हूँ, इफ यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, इफ यू आर डूइंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कंप्लीटली लाइक अच्छे से कर रहे हो जेई प्रिपरेशन, that will be more than enough for the selection. The cutoff is around 50%, 50, 52, 59, 58 इतना कुछ परसेंट कट ऑफ जाता है। तो हम यदि उसका 1/4 25% छोड़ देते हैं, 75 में से 55% स्कोर करना अच्छे से पड़ा होगा तो वैसे भी आता है। सर बोलो सर, इन केस हमने IIT क्रैक कर ली और KVPI भी क्रैक कर ली, तो हम किसके लिए जाए? मैं आता हूँ, उस पे भी आता हूँ। It's entirely up to you. It's your choice कि तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में। If you want to go for research, then you can go for KVPY. If you want to go for engineering, then some other things. तुम्हें engineering ज़्यादा पसंद है, मतलब it's your choice. किसके लिए जाना चाहिए, मतलब दोनों ही साइंस से रिलेटेड है। एक हायर स्टडी के लिए ओरिएंटेड है, PhD के लिए जाना पड़ेगा तुम्हें, और दूसरा इंजीनियरिंग के लिए, मतलब ग्रेजुएशन तक या मैक्सिमम ग्रेजुएशन के बाद if you want to go for UPSC या MBA, अदर MS, मास्टर ऑफ साइंस जो 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है, MTech, तो डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहते हो।
और अगेन अभी हमें उस बारे में भी बहुत नहीं सोचना है, क्यों? क्योंकि हमारे सामने पूरा भी 11th 12th है। हम यहाँ पे अच्छे से देखें क्या, जब फाइनली रिजल्ट, व्हेन वी हैव फाइनल रिजल्ट इन आवर हैंड, देन वी विल डिसाइड कि क्या करना चाहिए। बट हाँ, ओरिएंटेशन इज यू मस्ट ओरिएंटेड टुवर्ड्स जेई एग्जाम, क्योंकि जो जेई का सिलेबस है उसी का कुछ पार्ट केवीपीवाई में, देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा इन केवीपीवाई। जेई में इससे ज्यादा सिलेबस है, जेई करोगे तो केवीपीवाई अपना आप कवर होगा। चलो, फॉर 12th स्टैंडर्ड केवीपीवाई एसएक्स सिलेबस। अब एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दो पहले, फिर लास्ट में आते हैं। फॉर 12th स्टैंडर्ड द सिलेबस इज हियर। उनके लिए जो 10th का कुछ पार्ट, 10th का सम पार्ट ऑफ 11th एंड 12th, 11th 12th ऑलमोस्ट कंप्लीट पार्ट, नॉट सम पार्ट, 60 70 80% सिलेबस होगा 11th 12th का। सो 12th के लिए कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं होती है, क्योंकि सिलेबस जनरली हम सितंबर अक्टूबर तक खत्म कर देते हैं, बट बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन दिस ईयर द सिलेबस विल बी एक्सटेंडेड टिल फर्स्ट और मे बी सेकंड वीक ऑफ दिसंबर, मतलब 1.5 मंथ डेफिनेटली एक्सटेंड होगा, बट नॉट मोर देन 15 दिसंबर फॉर एनी सब्जेक्ट इन 12th स्टैंडर्ड। क्लियर? और 12th के लिए अगेन PCM में हो, you can go for 3 subjects. If you are in biology, you can go for PCB. All 4 subjects are not compulsory. जैसा मैंने पहले बताया था, सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं यहाँ पर। Clear? The syllabus is here for chemistry, biology, physics and mathematics. तो काफी डिटेल में हैं और वो ग्रुप पे शेयर भी कर दी जाएंगी। You can also see this PPT after this presentation. क्लियर? इवन कुछ क्वेरी भी आती है, तुम पूछ सकते हो, बाद में भी मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और अदरवाइज लेक्चर के बीच में भी पूछ सकते हो, तभी तुम्हें बता दिया जाएगा, जैसा भी रहेगा। दिस इज ऑफिशियल सपोर्ट हेल्प डेस्क, मतलब जो केवीपीवाई ने अपने साइट्स पे दे रखी हैं वो डिटेल्स भी यहाँ पर हैं। फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू एप्लीकेशन फॉर्म यू कैन कॉल दिस नंबर, यू कैन मेल टू दिस नंबर, and this number is available between 10 to 5 as per given on site. I don't know कि वो पिक करेंगे नहीं करेंगे, क्या रिप्लाई करेंगे, बट ऐसा साइट पे दे रखा है ये इंफॉर्मेशन। सर बोलो श्रेयस, क्या बोल रहे हो? सर उनका नंबर नहीं लगता है। हाँ, वो मैंने बोला, वो लगेगा नहीं लगेगा वो आई डोंट नो, बट हाँ, तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, ऑन ऑफिशियल साइट इटसेल्फ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा लगेगी कि कॉल लगाना ही पड़े। और स्पेशली कोविड सिचुएशन में एवरीवन इज वर्किंग विद द हाफ स्ट्रेंथ, तो शायद अब तो और भी ना लगे या कोई रिसीव ना करे, बट स्टिल मतलब इफ यू गेट एनी क्वेरी यू कैन कॉल देम, ट्राई कर सकते हो। बहुत एक्सट्रीम लेवल की कुछ क्वेरी आ गई जो कहीं से सॉल्व नहीं हो पा रही है, उसका सॉल्यूशन हमारे एंड से भी नहीं मिल पा रहा है, कुछ नया ही कुछ चीज आ गई है, यू कैन मेल ऑल्सो। मेल का रिप्लाई आ जाता है इन जनरल, चाहे थोड़ा लेट आए बट आ जाता है। हाँ सर, आ जाता है। और उस टाइम जो रजिस्ट्रेशन किया था आई गॉट यूजर आईडी एंड पासवर्ड ऑल्सो, तो हम वो भी करके देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या लगेगा उसमें। दिस इज द रिजल्ट ऑफ नासिक रेजोनेंस लास्ट ईयर रिजल्ट, जो शायद तुम्हें सभी को पता ही होंगे। ऑल इंडिया रैंक 30, जो नासिक सिटी से फर्स्ट टाइम ये ऑल इंडिया रैंक टॉप 100 में प्रोड्यूस हुआ था। Then 5 overall selection from SX stream. Generally 11th में सर रिजल्ट नहीं दिख रहा है। सॉरी, रिजल्ट नहीं दिख रहा है। हाँ अभी दिखा। थोड़ा पेशेंस रखो, दिखेगा, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा बस। तो ये रिजल्ट लास्ट ईयर था। ऑल रिजल्ट्स आर फ्रॉम SX। जनरली 11th में हम भी बच्चों को ज्यादा फोर्स नहीं करते हैं कि वो केवीपीवाई के लिए फोकस करें, और उसका रीजन ये होता है, मैं ये नहीं बोलूं कि तुम्हें केवीपीवाई एग्जाम नहीं देना है, देना तो सभी को चाहिए, बट रीजन ये होता है सम पार्ट ऑफ 12th इज आल्सो देयर, बायोलॉजी इज आल्सो देयर, और इसका जो लेवल है, जो लेवल एग्जैक्टली होता है जेईई मेंस और एडवांस के बीच का। तो हम जब 11th में स्टार्टिंग में आए होते हैं, हमें बहुत ज्यादा चीजें टच में नहीं होती, और एकदम से हम केवीपीवाई दे दें वो पूरा एनर्जी के साथ कि नहीं हमें तो सिलेक्शन चाहिए और हम उस पर पूरा फोकस करें, तो जो जेईई का टेक है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। हम आईआईटी की जो प्रिपरेशन करते हैं वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ डेफिनेटली यदि तुम्हारा फाइनल एम ये है कि हमें तो जाना ही रिसर्च के लिए, देन यू कैन गो फॉर दिस, बट हमारा फाइनल एम ये है कि हमें इंजीनियरिंग आईआईटी के लिए जाना है,
तो फिर हाँ, इसके लिए बहुत ज्यादा फोकस करने को नहीं कहा जाता है। सर एक मिनट ईशान। सो ये कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, ठीक है, दैट यू ऑलरेडी हैव। ये पीपीटी शेयर भी कर दी जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग भी है वो भी शेयर कर दी जाएगी। मैं एक बार वापस से साइट पे चले जाता हूँ जो लॉगिन आईडी डिटेल्स आए, ताकि हम वो भी देख लें कि क्या एग्जैक्टली उसमें हमें फिल करना होगा। Dear XYZ, you have registered for KVPY. User ID is 26473 and the password is 6455268. Go to application. Is it visible? no case. Yes, sir. Yes, sir. Go to application पे हमने क्लिक किया है। अच्छा, ये पर्सनल डिटेल्स हैं। हाँ, जेंडर मेल, कैटेगरी जनरल, जो भी तुम्हारा कैटेगरी है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, नो। कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, यू नीड टू पुट एड्रेस हियर, मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें रखना है। क्लियर? और उसके बाद फिर एकेडमिक डिटेल्स, ऊपर वाला कॉलम, यू नीड टू फिल योर एग्जामिनेशन डिटेल, कौन सा बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, परसेंटेज स्कोर, क्लियर, इन 10th स्टैंडर्ड, फॉर द 10th स्टैंडर्ड परसेंटेज हमें लिखने हैं। वहां पे 75 था, लेट से हम 74 रखेंगे तो शायद वो आगे एप्लीकेशन ही नहीं करेगा, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन हो गया। योर एग्रीगेट परसेंटेज फॉर 10th इज लेस देन 75, यू आर नॉट एलिजिबल, तो एप्लीकेशन फॉर्म ही कंप्लीट नहीं, आगे फिल ही नहीं होगा। क्लियर? सो definitely we must have minimum 75% marks here. Other detail, 11th standard in science subject on, मतलब जस्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब हमने ज्वाइन किया था 11, वो जो बेसिक डिटेल्स है वो पूछी गई है। नेम एंड एड्रेस ऑफ कॉलेज, जो भी कॉलेज में तुमने एडमिशन लिया है। देन यू नीड टू अपलोड हियर योर स्कैन कॉपी ऑफ योर फोटो, upload view scan copy of your signature, then 1250 payment plus bank service charges जो भी होंगे। वो सबमिट करके डायरेक्ट पेमेंट ऑप्शन पे चले जाओ, मतलब काफी सिंपल सा प्रोसेस है, उसमें ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं है। प्रीव्यू में देख लेना पहले कि कौन सी चीज तुमने फिल की है, सही है या नहीं। जनरली ये जो फॉर्म होता है केवीपीवाई का, वो सेंटर से फिलअप किया जाता था हर साल, बट बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन दिस ईयर नो, लाइक दिस थिंग इज नॉट अलाउड टिल नाउ, तो सिंपली तुम घर बैठ के कर सकते हो, 20-30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा पूरी प्रोसेस में। Excuse me, sir. वेट फॉर अ मिनट। हाँ, बोलो अब क्या बोल रहे हो? Sir, engineering courses are there in KVPY. इंजीनियरिंग Courses are there in IISc. I'm not getting your voice, you can type in chat box. Pratham Kapure is here. So Pratham, can you hear me? हाँ सर। तो प्रथम ने लास्ट ईयर आ रही है? हाँ आ रही है। प्रथम ने लास्ट ईयर केवीपीवाई क्रैक किया था, अभी उसका आईआईटी का एडवांस है 27 को, 10 डेज आफ्टर 10 डेज।
तो जस्ट उसे रिक्वेस्ट किया कि कुछ 15-20 मिनट्स आकर कुछ चीजें केवीपीवाई से रिलेटेड बोलना है तो बोल लो, ताकि सब बच्चों को थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया मिल जाए। प्रथम कुछ चीजें मैंने बताई, शायद सुनी भी होगी कुछ। इफ यू वांट टू से समथिंग रिलेटेड टू केवीपीवाई। हाँ सर, ठीक है। तो जैसे मैं सुन रहा था बहुत से लोगों का ये सबसे बड़ी क्वेरी होती है कि मैं इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे ये करना है, पर मैं केवीपीवाई दूँ या नहीं, तो दूँ या फिर मेरा सिलेक्शन ना हो तो क्या। तो मतलब मैंने 11th में और 12th में दोनों क्लासेस में केवीपीवाई दिया था। तो 11th में केवीपीवाई देने का एक ही मकसद था, वो था कंपटीशन को जज करना। माने क्या जज करना कि ऐसा होता है कि केवीपीवाई में आपके साथ बहुत से लोग हैं जो आगे चल के आपके साथ कंटिन्यू होंगे, या तो जेई में या फिर नीट में। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये पहली ऐसी एग्जाम है नेशनल लेवल की जो बहुत अच्छी तरह कॉम्पिटिटिव होती है। मतलब तकरीबन 1,30,000 से 1,70,000 लोग हर साल इसे भरते हैं। तो इसके बाद जेई ही एक बड़ी एग्जाम है जो आप दोगे 11th और 12th इस पीरियड में। तो ये तो एग्जाम देनी चाहिए। मतलब अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको चाहिए कि मैं कुछ अच्छी एग्जाम दूं, तो केवीपीवाई जरूर दीजिएगा। और ये जो डाउट होता है कि 11th में हूँ तो 12th का सिलेबस कितना आएगा, और 12th का सिलेबस आया तो मैं क्या करूँ, बायोलॉजी मेरा नहीं है, मैंने मैथ्स लिया है, तो मेरे से होगा या नहीं होगा। तो जनरली 11th का जो कट ऑफ होता है 100 में से, वो अभी तक मैक्स टू मैक्स मेरे ख्याल से 46 या 47 गया होगा जनरल कैटेगरी के लिए। और 46 to 47 मार्क्स अगर आपका प्रिपरेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में बहुत अच्छे लेवल का हो चुका है 10th तक, या फिर 10th से जो अभी आपको पीरियड मिल रहा है 11th का प्रिपरेशन करने के लिए, वो पीरियड बहुत अच्छा होता है आपका इस लेवल का मैथ्स, इस लेवल का केमिस्ट्री या इस लेवल का फिजिक्स सुधारने के लिए, कि आप केवीपीवाई में अच्छी तरह से अपियर हो सके। रही बात 12th की, जो बच्चे 10th तक अच्छा खासा आगे का पढ़ चुके होते हैं, मतलब जिनको थोड़ा बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थोड़े बेसिक्स होते हैं जो 12th में आते हैं, पर कुछ हमें 10th में भी पढ़ा दिए जाते कई कोचिंग में वगैरह, तो वो वैसा हम कर सकते हैं। पर ऐसा भी नहीं कि बायो में हमसे कुछ नहीं होगा। 2-3 क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा मैथ्स का बच्चा, क्योंकि दे आर वेरी जनरल। एनवायरनमेंट के बारे में पूछ लिया कि जैसे ओजोन गैस ग्रीन हाउस गैस है या नहीं, वैसे मतलब बहुत जनरल जो बायोलॉजी होते हैं वैसे पूछ ली, तो उतना 1-2 क्वेश्चन हमें आ ही जाते हैं। तो पूरी तरह बायोलॉजी छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, तुक्के नहीं मारना। केवीपीवाई में तुक्के मारने से बहुत ज्यादा लॉस होता है। हमें लगता है कि +1 -1/4 और +2 -0.5 तो बहुत छोटी नेगेटिव मार्किंग है, पर एक्चुअली वो जेई में +4 -1 के इक्वल हो जाता है, या फिर नीट में +4 -1 के इक्वल हो जाता है। तो उस बात का खास ख्याल रखना कि तुक्के मत मारना केवीपीवाई में। और जो सेक्शंस होते हैं उसका बहुत अच्छा नॉलेज हमें होना चाहिए कि हमें कौन से सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि हर साल आपको 11th में 4 में से 3 सेक्शन अटेम्प्ट करने होते हैं और 12th में 4 में से 2 सेक्शन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आपको पहले देखना है, आपको 3 घंटे मिलते हैं और केवीपीवाई इतना लेंथी नहीं होता कि आपके पूरे 3 घंटे कंज्यूम कर ले। तो आपको पहले देखना है कि उन 4 सेक्शन में से जो हमें सेकंड पार्ट में अटेम्प्ट करने हैं, जो हमारा +2 और -0.5 का जो सेक्शन है, उसमें हमें जो 3 सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने हैं वो हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए। और सच कहूँ तो हमें ये उधर ही पता चलता है कि हमारे कौन से सेक्शन अच्छे हैं, क्योंकि कहीं फिजिक्स तो ऑल टाइम टफ ही होता है केवीपीवाई का। फिजिक्स और मैथ्स दे आर ऑल टाइम टफ, मोर टफ देन बायोलॉजी और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सबसे इजी सेक्शन होता है, तो जिनका केमिस्ट्री वीक है वो पूरा फोकस करे केमिस्ट्री पर, क्योंकि केमिस्ट्री में हाई स्कोरिंग होता है, बहुत हाई स्कोरिंग। तो मैथ्स में बहुत ही कम स्कोर जाता है बच्चों का, क्योंकि उधर जैसे केवीपीवाई है किस बात के लिए, रिसर्च के लिए। तो वो बस आपका यही कैलिबर चेक करना चाहते हैं कि आप किसी चीज को किस तरह से इनोवेट कर सकते हो। और हाँ, केवीपीवाई में 2 से 3 सवाल आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पे मिल ही जाएगी आराम से, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे मैथ्स में हो। मतलब इन तीनों सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिया जाए तो सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन हम बस थ्योरेटिकल पढ़ते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, पर सरफेस टेंशन में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट क्या होता है ये हमें प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, और वैसे सवाल केवीपीवाई में पूछे जा चुके हैं। तो उन 1-2 क्वेश्चन के लिए अपना पूरा उधर का टाइम मत खराब करना, क्योंकि वो 1-2 क्वेश्चन ना टॉपर से होते, मतलब बहुत से लोगों से नहीं होते वो, तो वो अपने लिए बने ही नहीं है। और जैसे अभी तक आपको पता चल गया होगा कि रिजेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज मोर इम्पोर्टेंट देन सिलेक्शन, तो केवीपीवाई भी उसी फॉर्मेट पे चलता है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये कि ये आपकी पहली ऐसी एग्जाम होगी नेशनल लेवल की जो बहुत अच्छा खासा रेपुटेशन रखती है, क्योंकि इससे स्कॉलरशिप भी मिलती है। जिनको रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उनके लिए मतलब केवीपीवाई बहुत बड़ी एग्जाम होती है,
क्योंकि इससे आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है ना, वो एक्चुअली आपका मोस्ट ऑफ द एजुकेशन कवर कर लेती है। इतनी इतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है KVPY से। तो और एक बात की जो मैंने आपको बताया, 4 में से जो 2 सेक्शन या फिर 3 सेक्शन चूज करे, वो उस पेपर के वक्त चूज करना। पहले से मन में मत रख के जाना कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अटेम्प्ट करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अटेम्प्ट करना है, क्योंकि उधर अगर केमिस्ट्री बहुत इजी आ गया तो केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना होगा, अगर फिजिक्स बहुत इजी आ गया तो फिजिक्स अटेम्प्ट करना होगा। तो आपको पहले देखना होगा एक ब्रीफ में कि कितना लेवल का प्रिपरेशन हो चुका है और उस हिसाब से कितना KVPY में एक्चुअल में आ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होते हैं। प्रथम एक मिनट, ये जैसे जो था ना कि चूज करना है हमें क्या करना है, मेनली फॉर 12th स्टूडेंट कि हमें कुछ 4 में से 3 चूज करना है, 4 में से 2 चूज करना है, तो 12th के लिए काफी ज्यादा मैटर कर जाता है कि हम क्या चूज करना है। 11th में एवरीथिंग इज कंपलसरी, बट डेफिनेटली पहले हमें वो सेक्शन करने हैं जो स्ट्रांग। यस प्रथम, यू कैन कंटिन्यू। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि एज इट इज मैंने देखा है एज इट इज केमिस्ट्री के क्वेश्चन रिपीट हुए विदाउट एनी ऑप्शन चेंज या फिर कुछ भी। क्योंकि मैं भी पर्सनली KVPY से 1-2 दिन पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था, तो सर से भी पूछा कि सर इसका आंसर वगैरह क्या होगा, तो एज इट इज वो क्वेश्चन आ गया था क्वेश्चन एग्जाम पेपर में, एज इट इज एकदम पूरा। तो वो जरूर करके जाना, उससे आपके कम से कम 2 से 3 मार्क इंप्रूव हो गए, और 2 से 3 मार्क बहुत ज्यादा होते हैं KVPY में। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाना। प्रथम वन मोर क्वेश्चन जो मैक्सिमम बच्चों का है, मतलब तू आंसर कर क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा बच्चे कंफर्टेबल फील करेंगे। हम जो जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो KVPY प्रिपरेशन में क्या डिफरेंट किया था तूने? क्या ऐसा कुछ अलग किया था और कितना ज्यादा अलग किया था, क्या नहीं किया था? रेगुलर पढ़ाई में ही हो गया था सब कुछ? अच्छा, तो सर ये क्वेश्चन तो हमें भी बहुत पड़ा था जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, पर सच कहूँ तो मेरे एक दोस्त है जो प्योर रिसर्च में इंटरेस्टेड है, मतलब उसको प्योर साइंटिस्ट ही बनना है उसको, मतलब वो जेई का प्रिपरेशन अभी कर रहा है, उसका भी मेरे साथ ही एडवांस है, उसका KVPY में ऑल इंडिया रैंक कुछ तो भी अंडर 10 ही आया था शायद, कुछ तो भी ऐसा ही आया था 12th में। तो उसने अभी पूरा दम अपना ISC बैंगलोर पे लगा दिया है, क्योंकि उसको पूरा इंटरेस्ट इस पे था, किस पे, रिसर्च पे। तो जो आपने बताया कि क्या अलग करना है, तो एक्चुअली कुछ भी अलग करना नहीं है, मेंस और एडवांस के बीच में होता है KVPY। तो अगर आप मेंस से थोड़ा ऊपर और एडवांस से थोड़ा नीचे चले जाओ तो उतना KVPY का लेवल होता है, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ अगर आपको ISC बैंगलोर, आईसर पुणे, ये 2 कॉलेजेस चाहिए तो आपको बहुत मतलब उसके लिए डेडिकेशन देना पड़ेगा, क्योंकि उसके हाई रैंक पे कट ऑफ जाती है, मानना तकरीबन 300 रैंक के अंदर आपको लाना पड़ेगा अगर आपको आईसर पुणे और ISC बैंगलोर चाहिए तो जिन बच्चों को, और ISC बैंगलोर इज वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड कॉलेजेस ऑफ द नेशन, तो अगर आपका वो ड्रीम है तो आपको KVPY के लिए स्पेशली कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना कुछ भी नया करना नहीं है। हमने भी नहीं किया था, और जो बच्चे एवरेज जेई प्रिपरेशन करते हैं वो कुछ नया नहीं करते। जो क्वेश्चन आप देखेंगे ना मेंस के एज इट इज क्वेश्चन KVPY में आ जाते हैं 12th में, मैंने देखा है 2014-15 के जो क्वेश्चन थे वो 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे KVPY में, सेम माने एकदम क्लोज, डायमेंशन एनालिसिस का सपोज हो गया फिजिक्स का। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स है जो नया क्वेश्चन नहीं बना सकते, तो KVPY को जेई एडवांस या फिर मेन से उठाना पड़ता है। तो अगर आप ये ठीक से कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बेसिकली उसका एंड आंसर ये हुआ कि हमें KVPY के लिए कुछ भी स्पेशल प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम जो रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं दैट विल बी मोर देन इनफ। जस्ट फॉर द लास्ट 1 month यू कैन अटेंड सम 5-6 टेस्ट पेपर, जो प्रीवियस ईयर पेपर से उन्हें अटेंड कर सकते हो, ताकि एक रफ आइडिया मिल जाए कि कैसे KVPY हो रहा है। और ये जो टेस्ट पेपर है तुम्हें रेजोनेंस से भी प्रोवाइड किए जाते हैं। रेजोनेंस तुम्हें इस बारे में हेल्प करता है, तुम्हें एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देकर कि KVPY क्या एग्जाम है, क्या उसका होता है, प्लस जो टेस्ट पेपर है वो कंडक्ट कर लिए जाते हैं, तुम उसके डाउट्स वगैरह पूछ लो, इतना इनफ है KVPY क्लियर करने के। और पीयूष का एक क्वेश्चन था कि सर 11th में क्रैक करेंगे तो ही 12th में दे सकते हैं, जैसा अभी प्रथम ने बताया उसने दोनों साल दिया, क्लियर नहीं हुआ था, तो ऐसा कुछ भी नहीं, बोथ एग्जाम्स आर इंडिपेंडेंट। तुम 11th में दो ना दो, क्लियर हो ना हो, कुछ मैटर नहीं करता है, तुम 12th में इंडिपेंडेंटली दे सकते हो। एंड इफ यू क्लियर एनी वन ऑफ द एग्जाम, 11th या 12th किसी का भी एक क्लियर कर लोगे, यू विल बी एलिजिबल फॉर ऑल दिस फेलोशिप एंड एडमिशन थिंग्स। और सर मैंने एक बात देखी कि 11th में अगर क्लियर नहीं हुआ तो बहुत से बच्चे, मतलब हमारी बैच में बहुत बच्चों का, मतलब ऑलमोस्ट किसी का भी नहीं हुआ था, 0 सिलेक्शन था 11th में हमारे बैच से। तो लगता है हमें कि हमारा कहीं कम तो नहीं पड़ रहा अभी तक प्रिपरेशन में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे 43.5 मार्क्स थे आउट ऑफ 100 और कट ऑफ 44 पे गया था। तो बेसिकली इतना तो मार्जिन होना ही चाहिए, मतलब
अगर आपका इतना मार्जिन है तो ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर नहीं हुआ तो बहुत मतलब उससे कुछ सीखना है, क्योंकि ये एग्जाम बहुत अच्छी और कंसेप्चुअल एग्जाम होती है। आपके कंसेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे केवीपीवाई से, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि जैसे सर को भी मतलब सर ने भी हमारा इंटरव्यू लिया था, तो उसमें जो क्वेश्चन इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं या फिर जो रिटन टेस्ट में पूछे जाते हैं, वो बहुत अच्छे मतलब कंसेप्ट पे ये होते हैं। ऐसे कोई इरेलेवेंट क्वेश्चन होता नहीं, तो आप मान के चलिए कि उससे ही थोड़ा हाई लेवल पे एडवांस होता है। तो अगर आप केवीपीवाई में कुछ हद तक अच्छा कर सकते हो तो आप सडन मतलब श्योर है कि आप बहुत अच्छा कर लोगे किसी भी एग्जाम में।